નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપ સર્વે મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો આજે આપણે જોવાના છે ધોરણ 11 વિષય તો કે આપણો હિન્દી, જેનો મિત્રો પાઠ 2 એટલે કે એકાઈ 2 બાપુ કી કુટિયા મેં એનું મિત્રો આજે સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની સંપૂર્ણ ચર્ચા કરીશું। તો ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, કેમ કે આપણી ચેનલમાં માત્ર હિન્દી વિષય નહીં મિત્રો, આર્ટ્સના તમામ વિષયો, કોમર્સના તમામ વિષયો, આ બધા જ વિષયનું મટીરિયલ તમને આપણી ચેનલમાંથી મળી જશે, યુટ્યુબ ચેનલમાંથી। તો તમે ત્યાં જઈને તમે બધા જ વિડીયો જોઈ શકો છો। तो चलो मित्रों આપણે बात करिए प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्प में से चुनकर कीजिए। लेखक कहाँ बैठे हैं? तो जवाब आएगा पायताने में। डायरेक्ट मित्रों આપણે જવાબની ચર્ચा કરીશું। शेल्फ के ऊपर रखा पत्थर का टुकड़ा कैसा है? तो उबड़ खाबड़ वाला। चिकने पत्थर के टुकड़े पर क्या लिखा है? तो कि प्रेम ही भगवान है। बापू की कुटिया में कितने भाग है? तो 3 भाग है, એટલે કે जवाब आएगा 3। दूसरा प्रश्न है एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। लेखक ने विश्व बंधु व्यक्ति किसे कहा है? तो लेखक ने गांधी जी को विश्व बंधु व्यक्ति कहा है। बापू का बिस्तरा किन वस्तुओं से निर्मित था? तो बापू का बिस्तरा खजूर की चटाई, एक गद्दा और खादी से निर्मित था। हिंदुत्व के नाम पर किसने अनर्थ किया? तो हिंदुत्व के नाम पर बापू के हत्यारे ने नथुराम गोड्से ने अनर्थ किया। अंतिम दिनों में बापू की सेवा कौन करता था? तो अंतिम दिनों में बापू की सेवा राजकुमारी अमृता कौर करती थी। थक जाने पर बापू किससे के सहारे बैठते थे? तो थक जाने पर बापू एक बड़े तकिए के सहारे बैठते थे। आगळ वधीए पहला मित्रों आ विडियोनी डिस्क्रिप्शनमां आपणी एप्लिकेशननी लिंक छे, तो ત્યાંથી अथवा तो प्ले स्टोर જ્યાંથી તમે गेम ने એવું डाउनलॉड करो છો ने, हाँ આવું કંઈક હોય છે ને प्ले स्टोर, हाँ तो प्ले स्टोरमांथी તમારે આપણી એપ્લિકેશનનું નામ સર્ચ કરવાનું છે, જેનું નામ આવું સેમ ટુ સેમ છે એને એ તમે ડાઉનલોડ કરવાની છે। બીજી એક તમને સર્ચ કરશો એટલે આવશે VDE, જે આપણી જૂની એપ્લિકેશન છે પણ એ ટૂંક સમયમાં બંધ થઈ જશે, એટલે તમારે આને ક્લિક કરવાની છે અને આને ઇન્સ્ટોલ કરી લેવાની। ઇન્સ્ટોલ કરીને પહેલું જ પેજ આ આવશે, એટલે તમારે સમજી જવાનું નવી એપ્લિકેશન છે। મોબાઈલ નંબર દ્વારા વેરીફાઈ કરી લેવાનો, OTP આવી જશે, નાખી દેશો, આવું કંઈક હોમ પેજ આવશે। હવે અહીંયા શું મળશે? તો કે અહીંયા તો ખાસ તો કે પહેલાં તો મટીરિયલ એટલે કે જે ઇકોનોમિક્સ છે, પછી BA છે, તો આવા વિષયોનું જે રંગીન મટીરિયલ સાથેની PDFો છે, શોર્ટકટ સાથેનું પાર્ટ વાઇઝ, તો એ પણ તમને અહીંથી મળી જશે। બીજી વસ્તુ, અહીંથી તમને જે ગુજરાત સરકાર દ્વારા એકમ કસોટી લેવાય છે એના પેપરો મળી જશે, એની પેપરોની PDF મળી જશે। ઓકે, હા અહીંથી આપણા પેપર આવશે, જ્યારે વાર્ષિક પરીક્ષાની આવશે, પ્રથમ દ્વિતીય પરીક્ષા, ત્યારે પણ એના પેપરો મળશે। પછી અહીંયા તમે ક્લિક કરશો ને એટલે તમને જો અહીં ધોરણ વાઇઝ આવું ખુલી જશે। હવે ધોરણ વાઇઝ ખુલશે એટલે તમારે જે તે ધોરણમાં જવાનું છે। ધોરણમાં જશો એટલે અહીં વિષય ખુલશે। હવે ઘણા એમ કહેશે અહીંયા તો બીજા વિષય છે, પણ તમે ધોરણ 11નો ખોલશો તો 11ના વિષયો આવશે, એમાં પાઠ વાઇઝ જવાનું અને જે તે એક ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આવી રીતના જો લિસ્ટ ખુલશે। પાઠની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, જો ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીને એવું કંઈ હોય તો એવું એક્સ્ટ્રા મટીરિયલ હશે તો એ પણ ત્યાં મૂકવામાં આવશે। તો આવી રીતના સંપૂર્ણ મટીરિયલ છે એ આપણી ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં મૂકવામાં આવે છે, અથવા તો એપ્લિકેશનમાંથી પણ તમને અહીંથી મળી જશે। તો ખાસ એપ્લિકેશન છે એ 3 થી 12 સુધી, ચેનલ આપણી છે 3 થી 12 સુધી ઉપયોગી છે, તો તમારા મિત્ર, સગા સંબંધી કે ભાઈ બહેનને પણ જાણ કરો, અને એપ્લિકેશન પણ ઉપયોગી છે તો એને પણ તમે સાથે રાખો, જેથી કરીને પેપર, મટીરિયલ, એકમ કસોટીના પેપરો, ઇવન PDF, તમામ PDF છે તમને અહીંથી મળી જશે, તો ત્યાંથી તમે સારી રીતે તૈયારી કરી શકો। चलो आगे बढ़िए। प्रश्न 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। लेखक अपने आप को दुर्भागी क्यों समझते थे? तो लेखक बापू के आदेश पर स्वतंत्रता आंदोलन के कूद पड़े थे। पढ़ाई छोड़कर अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के प्रति समर्पित कर दिया था। इसके लिए उन्हें काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ा था। बापू के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी, लेकिन बापू के जीवन काल के अनेक आवास पहुंचकर उन्होंने दर्शन न कर सके, लेखक उनके लिए अपने आप को दुर्भागी समझते हैं। दूसरा प्रश्न, लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को गोखशाली क्यों कहा? तो लेखक के अनुसार गांधी जी का बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक
गद्दा डालकर उसे खादी के ढककर बनाया गया था, लेकिन उस पे सादगी के साथ भी वह बिस्तर महान है। वह बड़े बड़े रत्नजड़ित सिंहासनों से भी बड़ा है, क्योंकि वह उस बिस्तर को अपने ऊपर एक महापुरुष को दिनों के महीनों वर्षों तक आसीन करने का गौरव प्राप्त हुआ है, जिसके दर्शन के लिए लोग तरसते थे। उस महापुरुष का साथ पाने का सौभाग्य उस बिस्तर को प्राप्त हुआ है। इसीलिए लेखक गांधी जी के बिस्तर को गौरवशाली, गौरव है मित्रों, गौरवशाली कहा है। नेक्स्ट, गांधी जी के शेल्फ में कौन कौन सी पुस्तक है? तो गांधी जी की उदार विचारधारा के सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा और समानता के भाव रखते वाले महापुरुष थे। उनके शेल्फ में तरह तरह की पुस्तकें थी। उसमें रिथिंकिंग, क्रिश्चियनिटी, हजरत ईसाई और ईसाई धर्म जैसी पुस्तकें थी। साथ में रामचरितमानस, गीता आदि गीताई जैसी पुस्तकें भी थी। इससे अलावा श्री स्वास्थ्य विभूति, आश्रम भजनावली तथा सार्थ गुजराती जोड़नी कोश जैसी पुस्तकें भी उनमें शेल्फ में थी। हे राम की स्मृति के में लेखक को किस कठोर चट्टान पर पटक दिया? तो बापू की कुटिया में लेखक अपनी कल्पना में बापू को अपने बिस्तर पे बैठे हुए चरखा चक्र घुमाते हुए तथा अन्य कार्य करते हुए देखते हैं। तभी लेखक की नज़र दीवार पर उभरे हे राम शब्द पर पड़ती है। ये एकाएक कल्पना लोक के उठकर ऐसी कठोर चट्टान पर पटक दिख जाती है कि जहाँ है हे राम शब्द उन्हें बापू के अपने बीच न होने का एहसास करा दिया है। उनके लिए उन्हें लगा है कि बापू उसे छीन लिए गए हैं। पांचवा प्रश्न है, बापू के तीनों बंदर इशारे से क्या कह रहे हैं? तो बापू के तीनों बंदर इशारे से कह रहे हैं कि आंखें, कान और जबान बंद करके आत्मस्थ होकर देखो और देखो तो लगेगा कि बापू यही है। जो मित्रों તમે સાથે ના લખી શકતા હોય તો વિડીયો પોઝ કરીને પણ તમે લખી શકો છો। निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। बापू की कुटिया में आकर लेखक अपना सौभाग्य क्यों मानता है? तो लेखक गांधी जी के जीवन में जीवित रहते उन्हें साबरमती आश्रम नहीं जा पाए थे। उसी बात को लेखक अपना दुर्भाग्य मानते हैं। बापू के न रहने पर उन्हें बिस्तर पर ज्यादा देर बैठकर लेखक को लगता है कि यदि यह बापू का जीवन जीवित रहते यहाँ आते तो उनके बिस्तर के निकट उतनी देर तक न बैठा पाता। उस शांत एकांत में उनकी कुटिया में से इतना तादात्म्य स्थापित करने का सुख भी उन्हें न मिल पाता। उनके पायताने बैठकर वह अपनी लेखनी को सार्थकता भी प्रदान न कर पाता। जो तब न मिलता वह आज पाने का अवसर मिलने से लेखक स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं। बापू के कमरे में लेखक को क्या क्या दिखाई देता है? तो बापू के कमरे में लेखक को बापू की सारी चीजें वह उपयोग की करते थे वह दिखाई देती है। लेखक बापू के बिस्तर को देखते ही जो खजूर की चटाई पर गद्दा और खादी के कपड़े से बना है था, बिस्तर पर बापू का तकिया और तुलसी की माला भी लेखक ने देखा। बापू का प्रिय चरखा भी वहां था, रखा हुआ था। साथ में बापू की घड़ी और खड़ाऊ भी रखा हुआ था। बापू के कमरे की खुली अलमारी पर उन्हें 3 बंदर की बापू की याद दिला रहते थे। जो बापू का कलमदान, रद्दी कागज डालने के लिए रखा टोकरा, पीतल का थूकदान, एक स्टैंड पर रखी पेंसिल और कुताई के सामने भी कुटिया में रखा हुआ दिखाई दिया। बिस्तर के पास 3 खानों का शेल्फ भी था। उन सारे स्मृति चिन्हों को कुटिया में बापू भी लग रहा था। बापू के बिस्तर का लेखक को क्यों महानता मानते हैं? तो लेखक बापू की कुटिया की सादगी देखकर हैरान रह जाते हैं। उसे लगता है कि हमारे ऋषियों की परंपरा अभी तक बनी हुई है। बापू के बिस्तर की सादगी लेखक को अभिभूत कर देती है। उसे लगता है कि अपनी उस सादगी में बापू सच में बहुत महान थे। रत्न जड़ित सुवर्ण सिंहासन भी बापू के बिस्तर की ईर्ष्या करते हुए होंगे, क्योंकि बापू जैसे महान हस्ती उन बिस्तर पर बैठती थी।
लेखक ने बापू के बिस्तर को महान मानते हैं क्योंकि बापू ने वर्षों तक उस पर बैठकर उसे गौरववंत किया था। किस बात की कल्पना लेखक को भाव मुग्ध करती है? तो लेखक को बापू की कुटिया में उनके चटाई पर पड़ी हुई देखते हैं। बापू से मिलने के लिए देश विदेश से आने वाले व्यक्ति उन पर बैठते थे। लेखक सोचते थे कि जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल जैसे देश के बड़े बड़े नेता उस चटाई पर बैठे होंगे। उसके अलावा संसार के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार और साहित्यकार भी बैठे होंगे। आज उन पर एक लेखक अकेले बैठे हैं। उनके इसी सौभाग्य की कल्पना लेखक को भावमुग्ध कर देती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित गद्यांश का आश्रय स्पष्ट कीजिए। तो आदमी का दुर्भाग्य भी कभी भी सौभाग्य बन जाता है। तो उसका जवाब ये मित्रों અહીં आपने आपेलू है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य का जीवन का एक हिस्सा है। यह मनुष्य की सफलता और असफलता से जुड़े हुए होते हैं। जब मनुष्य को किसी कार्य में सफलता मिलती है तो वह उसे अपना सौभाग्य मानता है और जब असफलता मिलती है तो वो अपना दुर्भाग्य मानता है। कभी कभी जीवन में दुर्भाग्य भी सौभाग्य बनाकर जाता है। उदाहरण रूप, हम किसी पहाड़ी पर घूमने के लिए जाना चाहते हैं लेकिन किसी कारण नहीं जा पाए तो उसी बात को हमें अपना दुर्भाग्य मानकर दुखी हो जाते हैं। कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि हम जिस पहाड़ी पर घूमने जाने वाले थे लेकिन नहीं जा पाए थे, वहां पर भूस्खलन हो गया है और कई लोगों की जान चली गई। तब हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। हम हमारी जान बच गई यह सोचकर खुश हो जाते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह आदमी का दुर्भाग्य भी कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। दूसरा प्रश्न है, सच्ची राह पर तुम क्रोध करने की जरूरत नहीं। तो અહીં તમને મિત્રો જવાબ આપ્યો છે, વિડીયો પોઝ કરીને પણ તમે જોઈ શકો છો। नेक्स्ट, ત્રીજો प्रश्न है, झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में है, चुप्पी साधकर भी झूठ बोला जा सकता है। तो અહીં તમે એનો જવાબ છે જોઈ શકો છો। વિડીયો પોઝ કરીને પણ તમે લઈ શકો છો। चलो नेक्स्ट જોઈએ प्रश्न, दिए गए विधानों की पूर्ति किए उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। अपने बिस्तर पर बैठे बापू अपने खालजीगिया को घुमा रहे हैं। तो क्या आएगा? चरखा चक्र, बी जवाब आवश्य। बीजो प्रश्न है, बापू को समझने के लिए इस छोटे से सेल्फ को खालजीगिया होगा। तो जवाब आवश्य भली भांति देखना। उन्हीं चट्टाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और निकलते, खालजीगिया पान करते। तो क्या आएगा? वचनामृत का पान करते। सातवां प्रश्न है, सामासिक शब्दों का विग्रह कर कर समास प्रकार बताइए। चरण स्पर्श, तो चरणों का स्पर्श, षष्टमी तत्पुरुष समास। कलम दान, तो कलम के लिए दान, रखने का पात्र, तो संप्रदान तत्पुरुष समास। रत्न जड़ित, तो रत्नों से जड़ित, करण तत्पुरुष समास। सुवर्ण सिंहासन, तो सुवर्ण से निर्मित सिंहासन, मध्यम पद लोपी समास। भावमुग्ध, तो भाव से मुग्ध, करण तत्पुरुष समास। वचनामृत, तो वचनों रूपी अमृत, कर्मधारय तत्पुरुष समास, सॉरी कर्मधारय समास। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न है, शब्दों में से प्रत्यय अलग कीजिए। हिंदुत्व, तो त्व छे प्रत्यय आवशे। अर्थवाला, तो के वाला। साहित्य, तो इक प्रत्यय आवशे, कयो आवशे? इक। पछी स्वच्छता, तो ता प्रत्यय आवशे। चट्टाइया, तो या प्रत्यय आवशे। वंदनीय, तो उस क्या आएगा? ईय प्रत्यय आवशे। स्वतंत्रता, तो के ता प्रत्यय आवशे। समर्पित, तो क्या प्रत्यय आवशे? ईत प्रत्यय आवशे। तो मित्रों अहींया आपणे इकाई 2 છે એનું સંપૂર્ણ છે સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની ચર્ચા કરી। તો આવી જ રીતના આપણે ધોરણ 11ના આર્ટ્સના કોમર્સના તમામ વિષયોના પાઠની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આવું તમામ મટીરિયલ છે એ આપણે મૂકતા રહીશું। તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ રાખજો અને તમારા મિત્રોને પણ જાણ કરી દેજો। અને આપણી ચેનલમાં ધોરણ 3થી 12 સુધીનું મટીરિયલ છે તો તમે પણ જોઈ લેશો અને તમારા મિત્ર, સગા સંબંધી કે ભાઈ બહેનને પણ જાણ કરી દેજો। તો આ વિડીયોમાં આપણે અહીંયા રાખીએ, બધી મળીશું, ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી રજા લઈએ। થેન્ક યુ, જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ।